So we'll start off with the next topic, that is domicile, nationality, and residence. So in the past decade, legal commentators across the globe have observed a significant integration of legal institutions with the help of harmonization of laws. And international law has been one of such instrument of integration. So initially, when I told you about private international law, each and every country has a different set of rules, regulations, laws when it comes to private law. Because every country is sovereign and the civil disputes they manage according to their own laws. But still, I have given the examples of European Union. I have given the example of various international institutions like World Bank or International Labour Organization or United Nations, who have tried to bring about certain kind of integration, harmonization among the different laws, specifically when it comes to civil disputes between different countries. Because of globalization, there has been so many different countries which are engaged in trade, and there is a free movement of goods, people, services, and that's why the number of disputes have increased with respect to countries, specifically civil disputes. So it required certain common, uniform, harmonized legal standards so that these civil disputes can be sorted out in a much better way. So two of the important components of private international law, which we have discussed, that is lex patria and lex domicile, that is law of domicile and law of nationality. They play a very critical role. So when I was teaching in the sessions, in that earlier sessions, I have told you that when it comes to marriage, nationality is taken into consideration. When it comes to property, uh, the domicile is taken into consideration. So all these factors are taken into consideration while the court providing the solution to the dispute. So both nationality and domicile are a means to provide protection to the person by the state, and in return, certain obligations are imposed on the person towards the state. सो ऑब्वियसली अगर आप नेशनलिटी की या डोमिसाइल की बात करेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी इंसान को किसी भी देश का हो, उसकी नेशनलिटी और डोमिसाइल देखा जाता है अगर उसके साथ कुछ गलत होता है व्हेन इट कम्स टू सिविल डिस्प्यूट्स इन एनी अदर कंट्री. So nationality implies obedience, whereas domicile is considered to be a connecting factor which links a person with a particular legal system. So it's a habitual residence. Domicile basically means you are living in a particular country for a specific number of years. आप हर एक कंट्री का डोमिसाइल का लॉ अलग होता है. इन सर्टन स्टेट्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 10 साल, 7 साल, 5 साल, या सम ऑफ द कंट्रीज 1 या 2 साल भी अगर आप कंटिन्यू रह जाते हो तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल मिल जाता है. पर नेशनैलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो इट इज बेसिकली लिंक्ड टू योर सिटीजनशिप, वेयर यू हैव योर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स मोस्टली व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दोस रिस्पेक्टिव कंट्रीज. But domicile is different. In domicile, that basically you are an immigrant in that country, but you are a person who is residing there for a number of years. But your nationality or your citizenship is different. So when I'm talking about domicile, it is the identification of a person to one system of law. In common parlance, it means a place where a person resides with the intention of remaining there indefinitely. Okay. So it is derived from the Roman law where a person decides to stay in a particular country for as long as possible, or even some person just move to America, some people go to Australia and they live the rest of their life without changing their nationality. Some of them also change their nationality, like there is Akshay Kumar, there is Arya Bhatt, where they have, now we can say Arya Bhatt Kapoor, they have changed their nationality to Canada. So they're Canadian and working over here. So they are national as well as domiciling Canada. The term domicilium comes from domum, colere, which means to inhabit. Domicile is not just a place of residence, rather it's a place of habitual residence. Remember that. It's not that you go for in a particular place. आप एक महीने के लिए जाके रह के आते हो या 15 दिन के लिए घूम के आते हो. That doesn't mean आप वहाँ के domicile बन जाते हो. आप we have to stay for there for a number of years. So this concept has also evolved significantly by a plethora of judgments. Lord Westbury remarked in Udni versus Udni that no man shall be without a domicile. And to secure this result, the law attributes to every individual as soon as he is born the domicile of his father if the child is legitimate, and the domicile of the mother if it is illegitimate. तो जस्टिस लॉर्ड वेडबुरी ने इस केस में बताया कि नॉर्मली आप जब पैदा होते हो जिस किसी देश में, तो उस देश का आपको डोमिसाइल मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर लेजिटिमेसी एज अ चाइल्ड. अगर आप लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, मतलब थ्रू मैरिज you are born
through proper rituals and proper legal formalities you have completed and you are a legitimate child, then the father's domicile is given. But if you're an illegitimate child where there is no marriage, there sometimes the single mother is there and father has not taken, there is no kind of legal bond between the mother and the father, then the child is considered to be illegitimate. In the case of illegitimate child, the mother's domicile will decide the child's habitual residence. So how to determine domicile? So when it comes to children, in common parlance, normally legitimacy means the state is acquired by a person who is born to parents who are married to one another at the time of the birth of the child. Normally हम यही assume करते हैं कि it's a common thing that we consider that yes, through a legitimate marriage बच्चा पैदा होता है. This is normal. In normal situations we consider in that sense. Thus, if a child is legitimate, the simple rule is that the domicile follows the domicile of his mother. In the other words, his domicile of origin is determined by the domicile of his father, irrespective of the place of birth of the child. तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि legitimate child होगा तो फादर का डोमिसाइल पे जाता है, इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा तो मदर के स्टेटस पे जाता है. बट कई बार ऐसा भी होता है कि फादर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर, वो एक जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन मदर एक जगह पे फिक्स्ड है. तो कई बार मदर के डोमिसाइल के ऊपर भी चाइल्ड का डोमिसाइल डिसाइड होता है. So if for instance, if child is born to father B, who has an English domicile, the child would also acquire English domicile as soon as is born. Later in life, the child can acquire a domicile of choice after he becomes independent and wishes to do so, and can also abandon it without acquiring a new one. तो अगर आप बच्चा बड़ा हो गया, वो चाहता है कि वो इंग्लैंड डोमिसाइल ना मिले, उसको फ्रेंच चाहिए, उसको जर्मन चाहिए, उसको अमेरिकन चाहिए, तो he can shift according to his choice. Thus in Grant versus Grant 2002 की केस है, a child was born in India, but his domicile of origin was held to be English following his father's domicile of origin. तो इंडिया में मैंने आपको वही भी कहा था कि इंडिया की नेशनलिटी या डोमिसाइल आपको आसानी से नहीं मिलती. Whenever a foreign child is born in India, that doesn't mean that he becomes an Indian citizen, because उसके दोनों parents foreigner है. और in this case the child was born to a father whose domicile was in England. So naturally बच्चे का domicile भी इंग्लैंड का होगा, इंडिया का नहीं होगा, because इंडिया में citizenship या domicile आसानी से नहीं मिलता. It is not that easy. Okay. However, a legitimate child born after his father's death shall acquire his mother's domicile. An illegitimate child's domicile is determined after his or her mother's domicile. ठीक है, ये तो पहले भी बताया मैंने. तो अगर illegitimate son है मदर बी का और बी अगर जो मदर है वो कनाडा की है तो बच्चा कैनेडियन डोमिसाइल होगा. So in a case a child is abandoned, अगर चाइल्ड को abandon कर दिया गया है तो his domicile of origin would be the country in which he was found. अगर माता पिता उसको कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, so जिस देश में उसको छोड़ के चले गए उस देश का डोमिसाइल उसको मिल जाएगा. Thus it is clear that the person receives at birth a domicile of origin, which it appears is determined as follows. Legitimate child born during the lifetime of his father and his domicile of origin in the country of his father's domicile at the time of birth. तो ये मैंने बोला कि legitimate child है तो father का domicile मिलेगा. अगर बच्चा पैदा होता है father के death के बाद, या अगर कोई बच्चा legitimate child है तो उसके मदर का डोमिसाइल उस बच्चे को मिलेगा. ठीक है, तो कई बार फादर माइट हैव डाइड एंड देन द चाइल्ड इज बोर्न और द चाइल्ड इज इलिजिटिमेट, तो मदर का डोमिसाइल डिसाइड करता है. और या अगर उसको फाउंड किया गया, वो अबैंडन्ड है, द चाइल्ड इज अबैंडन्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो जिस कंट्री में उसको अबैंडन किया गया है उस देश का उसको डोमिसाइल मिल जाएगा. तो ये कंसेप्ट याद रखिए कि डोमिसाइल और नेशनलिटी में फर्क है, डोमिसाइल और सिटीजनशिप में फर्क है. डोमिसाइल मिलेगा, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. तो हाउ टू डिटरमाइन द डोमिसाइल ऑफ अ मैरिड वुमन, क्योंकि शादी के बाद कई बार औरतें अपने हस्बैंड के साथ रहने जाती हैं तो उनका डोमिसाइल चेंज हो जाता है. ये कैसे डिसाइड होगा? सो अ वुमन ऑन मैरिज एक्वायर्स द डोमिसाइल ऑफ हर हस्बैंड एंड हिज डोमिसाइल रिमेन्स इन फोर्स अंटिल द मैरिज इज टर्मिनेटेड बाय डेथ. ओके, तो नॉर्मली जब तक मैरिज है तब तक जो भी उसका हस्बैंड जिस देश का है डोमिसाइल, उसी देश की भी डोमिसाइल उस औरत को मिल जाएगी. ओके, अगर वो उसके फादर उसका हस्बैंड मर जाता है, उसका मैरिज टर्मिनेट हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, सो ऐसे सिचुएशन में उसका डोमिसाइल चेंज हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, अ वुमन बॉर्न एंड एट ऑल टाइम्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया मैरीज अ मैन डोमिसाइल्ड इन फ्रांस, her domicile immediately becomes French even if she may have lived in France.
If her husband subsequently moves to Canada, she will acquire the domicile in Canada, whether or not she lived there. तो जहाँ कहीं भी उसके husband का domicile होगा, वही domicile उस औरत का होगा. So as per section 16 of the Indian Succession Act, it lays down that a wife's domicile during her marriage follows the domicile of her husband. तो domicile का जो law है इंडिया में, वो Indian Succession Act के section 16 में बताया गया है कि जो भी husband का जो domicile होगा, वही उसके wife का domicile रहेगा, भले ही वो वहाँ पे रहे या ना रहे. Till the marriage is valid, जब तक husband जिंदा है या जब तक marriage divorce नहीं हुआ है, तब तक के लिए डोमिसाइल औरत का अपने हस्बैंड का ही होगा. प्रिंसिपल्स गवर्निंग लॉ ऑफ डोमिसाइल, तो 4 बेसिकली जहाँ पे 4 फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है. पहला, नोबडी शैल बी विदाउट अ डोमिसाइल. हर किसी इंसान को डोमिसाइल तो 100% रहेगा. देयर कैन बी पीपल विदाउट सिटीजनशिप, देयर माइट बी पीपल विदाउट एनी नेशनैलिटी, हम उसको स्टेटलेस पर्सन्स कहते हैं, लेकिन डोमिसाइल के बिना पॉसिबल ही नहीं है. एवरी पर्सन विल गेट अ डोमिसाइल. सो दिस सिंपली मीन्स दैट अ डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन is acquired by each and every person by virtue of his or her death, by his or her birth, and it does not terminate unless the person acquires a new domicile. तो मैंने बोला legitimate है तो फादर का मिलेगा, illegitimate है तो मदर का मिलेगा, या अगर उसको अबैंडन कर दिया गया तो जिस कंट्री में उसको अबैंडन किया जाए वहाँ का डोमिसाइल मिलेगा. मतलब एट बर्थ आपको डोमिसाइल तो मिलने वाला ही है, अनलेस यू अक्वायर अ डिफरेंट डोमिसाइल ऑल टुगेदर, वो बात अलग है. उसके बाद for example, A is born to father B. B has a Canadian domicile. A shall automatically, by virtue of his father's domicile, acquire Canadian domicile, which shall remain in effect till A's death or till the time A decides to acquire domicile of choice. तो जब तक A जिंदा है, जब तक वो चाहता है कि वो कनाडा की डोमिसाइल उसके पास रहे, तब तक वो कर सकता है. Thus, as soon as the person is born, he is entitled to a domicile. This is how one remains without a domicile. ठीक है, किसी भी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इसका कोई डोमिसाइल नहीं, क्योंकि जैसे वो पैदा होता है तभी से उसका डोमिसाइल डिसाइड हो जाता है. सेकंड प्रिंसिपल जो है, अ पर्सन कैन नॉट हैव 2 डोमिसाइल्स एट अ टाइम. एक इंसान को 2 डोमिसाइल्स नहीं हो सकते. ठीक है, एक इंसान को एक वक्त एक ही डोमिसाइल हो सकता है. सो इट मींस दैट अ पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन 1 डोमिसाइल सर्टिफिकेट. एक से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं हो सकते. तो ए हैज कैनेडियन डोमिसाइल बाय वर्च्यू ऑफ हिज फादर्स कैनेडियन डोमिसाइल. ए शैल हैव ओनली कैनेडियन डोमिसाइल. एंड जब वो किसी दूसरे देश का डोमिसाइल ले लेगा तो उसका कैनेडियन डोमिसाइल जो है वो उसको गिव अप करना पड़ेगा. यू कैन नॉट हैव 2 डोमिसाइल्स एट वन, बिकॉज आगे जाके जब आप, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई आपके डिस्प्यूट है, आपके मैरिज रिलेटेड अगर आपके डिस्प्यूट है, टॉर्ट रिलेटेड आपकी डिस्प्यूट है, रेपुटेशन रिलेटेड आपकी डिस्प्यूट है, तो उसमें डोमिसाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है. डोमिसाइल कनेक्ट्स अ पर्सन विद ओनली वन सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल लॉ, कि एक ही टेरिटरी के साथ लिंक्ड होता है. हमेशा याद रखिएगा, एक डोमिसाइल एक ही देश के साथ लिंक्ड होता है, 4-5 देश नहीं हो सकते. सो ऑलवेज रिमेंबर, डोमिसाइल इज लिंक्ड टू अ पर्सन विद अ सिंगल नेशन. ओके, तो जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे तो ए कनाडा से लिंक्ड है, उसका डोमिसाइल कनाडा, तो उसके सारे राइट्स, उसके ड्यूटीज जो भी कनाडा उनके डोमिसाइल्ड सब्जेक्ट्स को या पीपल को देते हैं, वो उसको वो एलिजिटिमेट है, वो उसके लिए वो एंटाइटल्ड है. ओके, उसके अलावा कुछ नहीं. फॉर बीइंग अ डोमिसाइल इन कनाडा उसके कोई सर्टेन राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, वो उसको एंटाइटल्ड है. There is an assumption, fourth principle, there is an assumption that an existing domicile continues. Okay, so this principle is based on the character of tenacity of domicile. A domicile conferred by a birth continues until the person acquires another domicile by choice. So आप जब तक कोई दूसरा domicile खुद होके acquire नहीं करते, या अगर आप जब तक by choice अगर आप दूसरा domicile नहीं लेते, तब तक वो जो भी आपका at birth जो डोमिसाइल आपको दिया गया है वो आपका एंड तक रहेगा. ओके, वो डोमिसाइल दे विल बी टिल द एंड. ओके, सो दिस आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिसाइल. उसके बाद सो एग्जांपल अगर देखें तो इफ ए एट latter stage in life after attaining the age of majority wishes to give up his Canadian domicile, उसकी जगह पे वो ब्रिटिश डोमिसाइल चाहता है तो वो कर सकता है. Thus, his Canadian domicile shall continue to exist as long as he does not intend to acquire another domicile. तो ये मैंने आपको भी समझाया. तो अलग अलग टाइप्स हैं, काइंड्स हैं. So basically there are 3 kinds of domicile: domicile of origin, domicile of choice or necessary domicile, and domicile by operation of law. तो सबसे पहले domicile of origin, जहाँ पे आप पैदा होते हो. Okay, it is a concept that a person shall have domicile of his place of birth unless
वो अपना डोमिसाइल चेंज कर देगा, तो बात अलग है। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ पे आप पैदा होते हो उसका आपको डोमिसाइल मिलता है। इसके दो फीचर्स है, टेनासिटी एंड परसिस्टेंस। तो ग्रांट वर्सेस ग्रांट, अ चाइल्ड वाज बोर्न इन इंडिया, जैसे मैंने बोला, लेकिन उसके फादर जो थे वो इंग्लैंड के थे, सो नेचुरली उसका जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो इंग्लैंड है, इंडिया नहीं। सो जहाँ पे आप पैदा होते हो तो वो कभी कभी कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लूज अमंग ऑल द अदर टाइप्स ऑफ डोमिसाइल्स। की सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप पैदा होते हैं या जो आपके फादर का डोमिसाइल का जो ओरिजिन है वहीं से आपका लिंक रहेगा, फादर के लिंक, तो वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन लूज करना बहुत बहुत मुश्किल है। डोमिसाइल ऑफ चॉइस मतलब ये आपकी इच्छा के हिसाब से आप इंग्लैंड जा सकते हो, सेटल हो सकते हो, कनाडा में सेटल हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान, जहाँ पे आपकी मर्जी हो वहाँ पे आप जाके चॉइस से आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, and depending upon that वहाँ का डोमिसाइल आप एक्वायर करते हो, that is domicile of choice. So in Plumer versus IRC, a taxpayer had English domicile of origin. However, she spent 3 months every year in Guernsey, which was her hometown. तो उसके पास इंग्लैंड का डोमिसाइल था जहाँ पे वो पैदा हुई थी, उसके फादर का ओरिजिन जो है, लेकिन वो हर मतलब साल में मतलब तीन महीने गर्सनी जाके रहती थी, जो उसका होम टाउन है बेसिकली। So it was held that despite her English domicile of origin, she could acquire the domicile of choice in Guernsey if she was able to prove that Guernsey was her main habitual place of residence. तो अगर वो प्रूव कर सकती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे मैं हर साल के 3 महीने जाके रहती हूँ, ओके, इट इज बेसिकली इट इज वन ऑफ गर्सनी, जो इंग्लैंड के पास ही है, चैनल आइलैंड्स में आता है गर्सनी। इट इज वन ऑफ द चैनल आइलैंड्स व्हिच इज देयर इन द इंग्लिश चैनल, जो फ्रेंच कोस्ट के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो चाहती है तो अपना रेसिडेंस या डोमिसाइल शिफ्ट कर सकती है। डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज द वन दैट इज इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन अ पर्सन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हिज चॉइस और रेसिडेंस। तो हमने देखा था डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कि अगर कोई अबैंडन्ड चाइल्ड है, ओके, इफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज अबैंडन्ड, तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है, ओके, उसी कंट्री का उसको लागू होगा। सो डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो अगर व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड चेंज देयर डोमिसाइल, डोमिसाइल ऑफ द चाइल्ड विल गेट आल्सो चेंज। अगर माता पिता ने चेंज कर दिया, अबैंडन कर दिया, फादर ने चेंज कर दिया, मदर ने चेंज किया, तो उसके हिसाब से आपका बच्चे का भी डोमिसाइल बदलेगा जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। एक बार वो मेजर हो गया तो वो अपनी चॉइस का डोमिसाइल सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद की कंसेप्ट है नेशनैलिटी की। So several definitions describe the concept of nationality has been discussed by scholars. However, the simplest and at the same time the most comprehensive definition is given by Hosseini, Arya and Ahmadi. That is, nationality is a political, legal and spiritual relationship that links an individual to a state. तो basically आप जब nationality की बात करते हैं, so वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो nationality है वो डिपेंड करेगी आपके उस देश के साथ जो राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके साथ आपका लिंक हो जाएगा। अगर केस स्टडी देख लें, कैस्टेलियो पेट्रूजी वर्सेस पेरू, nationality was defined as the political and legal bond that links a person to a given state and binds him to it with ties of loyalty and fidelity, entitling him to diplomatic protection from that state. तो आप अगर इंडिया के नेशनल हैं तो आपके सर्टेन राइट्स हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके लीगल राइट्स हैं, आपके ड्यूटीज हैं। तो आप obviously you have to be loyal towards your country and at the same time the government will have to protect your rights and they will also enforce duties from you. तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो जो जुडिशरी है उस देश की वो आपके राइट्स को एनफोर्स करेगी, और इसीलिए इसको एक पॉलिटिकल और लीगल बॉन्ड माना गया है सरकार के बीच में या राज्य स्टेट के बीच में और किसी इंसान के बीच में। So what are the different principles which are governing the law of nationality? So again यहाँ पे देखा गया तो उन्होंने बोला एवरीवन शुड हैव अ नेशनैलिटी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कई बार इश्यूज है, रेफ्यूजीज के इश्यूज हैं, देयर आर पीपल हु डोंट हैव एनी नेशनैलिटी। सो स्टेटलेसनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा एक प्रिंसिपल है, लेकिन इसको अब तक पूरी तरीके से हम फुलफिल नहीं कर पाए। One important aspect of the law of nationality is that every person should belong to a particular nationality. If every person shall belong to a particular nation state, this would help in elimination the problem of statelessness. तो प्रॉब्लम है
कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे अगर मैंने पिछले सेशंस में रोहिंग्यास का एग्जांपल दिया था जो म्यांमार को बिलोंग करते हैं, लेकिन म्यांमार ये देश उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि दिस पीपल आर नॉट बिलोंगिंग टू आवर कंट्री, दे आर नॉट द नेशनल्स ऑफ आवर कंट्री। और इसीलिए वो अभी बांग्लादेश इंडिया के पास भाग के आ गए। उनको किसी ऐसे आइलैंड पे रखा गया है जिस आइलैंड पे कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, खाने पीने के वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग जो अपने देश भी नहीं जा पा रहे हैं और दूसरा भी कोई देश उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, such people are basically stateless people who are disowned by their own country और they are said that आप इस देश को बिलोंग नहीं करते। सेकेंड जो है having not more than one nationality, ये एक से ज़्यादा नेशनैलिटी कोई रख नहीं सकता, आप एक ही देश को बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। सो जब ड्यूअल नेशनैलिटी कई बार हम देख सकते हैं, so it is however found that dual nationality have a negative effect on the assimilation, political connectedness and social integration। आप दो देश को बिलोंग करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके इंडिया में अगर आप देखोगे तो भैया आप एक सिटीजनशिप के बारे में बात करो तो एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। बट और जो अमेरिका में अगर आप बोलोगे सर ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यूएस एंड योर रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब मैक्सिको या न्यूयॉर्क या टेक्सास, कैलिफोर्निया, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट और उस देश को बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यूएस की सिटीजनशिप है और जर्मनी की भी है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली कि आपके पास ड्यूअल डोमिसाइल नहीं हो सकता। So not only this person with dual nationality are often identified as person with dual allegiance or loyalty who have the potential to act contrary to the government's interest. Due to all such issues, it is recognized as an established principle of the law of nationality that seeking dual citizenship is discouraged. दो देशों की आप citizenship नहीं ले सकते। तो बहुत सारे देशों में dual citizenship नहीं है, including India, क्योंकि अगर आप एक ही मोमेंट पे अगर या दो या तीन देशों की अगर आपके पास नेशनलिटी होगी तो आप पे भरोसा नहीं कर सकता वो देश, आप कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर देश के खिलाफ खड़े हो सकते हो। सो दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए आप देखें यहाँ पे कि ड्यूअल नेशनलिटी जो है वो अलाउड नहीं, इन द सेंस है किसी देशों में, किसी किसी देशों में नहीं है, बट नॉट फेवरेबल नहीं है। सो इंटरनेशनल लॉ में इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेशनलिटी, it recognizes the concept of dominant and effective nationality, under which a dual nation will hold only one dominant and effective nationality for the purposes of international law। कि भाई आप दो देशों के भले ही आप नेशनल हो, लेकिन किस देश की नेशनलिटी इफेक्टिव होगी जब कभी भी कोई लीगल डिस्प्यूट होगा। तो अगर आप यूएसए के भी सिटीजन है, कनाडा के भी है, तो व्हेनेवर अ डिस्प्यूट अराइजेस, तो किस देश के लिए आपका ज्यादा एलिजेंस होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग नेशनलिटी होगी, इफेक्टिव नेशनलिटी, तो आप बोलोगे अमेरिका चाहिए। तो वो कंसेप्ट डेवलप की गई, टू वन नेशन दैट होल्ड्स देयर प्राइमरी नेशनल एलिजेंस। तो सबसे पहले मैं अमेरिकन हूँ, फिर मैं कैनेडियन हूँ, ऐसा बोलते हैं। और उसके अलावा बाकी कोई भी नेशनलिटी पर ले लो, वो सबऑर्डिनेट ही होगी। तो कभी भी जब कोई लीगल इशू होगा तो मेरा पहली जो प्राइमरी नेशनल एलिजेंस है मेरा जिस देश की तरफ, उस नेशनलिटी को आप प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल, द राइट टू चेंज नेशनलिटी। जी हाँ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप किसी देश की दूसरे किसी देश की नेशनलिटी अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इंडिया में अगर आप किसी दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप ले लोगे तो ऑब्वियसली आपको उस पर्टिकुलर हमारे देश की सिटीजनशिप आप खो दोगे और हमारे देश अपने देश की भी आप एक्वायर कर सकते हो। तो इसके लीगल इफेक्ट्स क्या है? सो नेशनलिटी कॉजेज द इंडिविजुअल टू हैव द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जो राइट्स हैं, जैसे वोट करना हो गया, आप इलेक्शंस में खड़ा होना हो गया, पब्लिक ऑफिस में इलेक्शंस के लिए कलेक्ट होना गया, सिविल सर्विसेज या जुडिशरी का मेंबर बनने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप जरूरी है। तो आप बहुत सारी सुविधाएं हैं, रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्कीम्स है, उसके लिए आप लायबल बनेंगे, आपके लिए वो एप्लीकेबल होगा। बट अगर आप एलियन हैं या आप फॉरेनर हैं, आप उस देश को बिलोंग नहीं करते, तो वो सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। States can provide their own nationals with political protections in the international arena, and nationals of a state include natural and legal persons by conferring certain fundamental rights। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इंडिया में वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, आप हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यू कैन सी ओवर हियर कि दैट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन या एक तरीके से राइट्स, ड्यूटीज आपके ऊपर कन्फर किए जाएंगे, वो देश आपको प्रोटेक्ट करेगा,
ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, यू कांट गो टू अमेरिका, यू कांट गो टू अफगानिस्तान, यू कांट गो टू जापान फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट, आपको इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में ही अप्लाई करना पड़ेगा. So this is done by exercising diplomatic protection, which is a mechanism of international law that is still employed by states to secure just treatment for their nationals abroad. ठीक है, इससे डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी मिलती है, आपको जस्ट ट्रीटमेंट भी मिलती है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बाहर देशों में भी आपके लिए मदद के लिए ये देश भाग के आएगा. So apart from diplomatic protection, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals on the Other States 1965 and a myriad of bilateral investment treaties facilitate the protection of foreign nationals. तो कई बार हम बाकी के देशों की स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज, कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे कई बार अगर डिस्प्यूट्स होती है तो हमारा देश हमें प्रोटेक्ट करता है. अगर कोई हम एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारा देश हमें प्रोटेक्ट करता है. हमारी वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, उस एम्बेसीज के लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं. For example, the recent case where Indian wing commander Abhinandan Varthaman, आपने अभिनंदन तो सुना ही होगा, was held captive in Pakistan. His release was caused a peace gesture by Pakistan. उसकी जो रिलीज किया गया पीस जेस्चर था कि आप उनको छोड़ दिया, ठीक है. However, it is likely that the Geneva Conventions regulating the conduct of armed conflicts and protecting civilians, health and aid workers apply. तो देखिए, एक सोल्जर को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक सिविलियन है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई इंजीनियर है, उनको अलग ट्रीट किया जाता है. तो सिविलियंस को अलग ट्रीटमेंट है, सोल्जर्स है, आर्म्ड फोर्सेस के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं या स्टेट प्रिजनर है, उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है. एंड दैट ट्रीटमेंट इज बीन मेंट आउट इन जेनेवा कन्वेंशंस. So another legal effect of nationality is the benefits a nation provides to its nationals. In private international law, the law governing the individual's personal status such as capacity, marriage, heritage and personality is determined by nationality by the help of the personal laws and several statutes, acts, codes which have been legislated to govern such personal status. तो अगर आप देखें यहाँ पे कि nationality जिसके ऊपर कन्फर की जाती है, तो जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सनल स्टेटस, लीगल स्टेटस, मैरिज, हेरिटेज, पर्सनालिटी, सारी चीज़ें आपकी नेशनलिटी डिसाइड करती है. सारे कायदे, पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे कायदे उसके हिसाब से आपके ऊपर अप्लाई होंगे और वो आपका पर्सनल स्टेटस को गवर्न करेगा. इन इंडिया, फॉर एग्जांपल, मैरिज अमंग हिंदूज आर गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट. राइट ऑफ नेशनलिटी इज अ राइट टू हैव राइट्स. हमेशा याद रखिएगा, जिस देश के आप नेशनल होते हो उस देश का आपको you get the rights belonging to that particular country. Again, nationality provides its citizen with public benefits, welfare, healthcare, retirement, funds, job opportunities, education, housing, access to the courts, public relief. बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में, बहुत सारी पॉलिसीज है. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, वी हैव सर्व शिक्षा अभियान. ऐसे सब हमारे यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज है. मिड डे मील स्कीम है, स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फ्री आपको मेडिकल है, तो कोर्ट के लिए लीगल एड है. ओके, सो अलग अलग ऐसे रिजर्वेशन है. तो यहाँ पे ऐसे सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, वो सरकार आपको देती है. लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो स्टेटलेस है, तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. देखिए, आर्टिकल 15 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका ये मानना है कि एवरी इंडिविजुअल शुड गेट अ सिटीजनशिप. हर एक इंसान को राइट टू नेशनलिटी है. आर्बिट्रेरली आप किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आपके आंखों के आगे हम देखते हैं म्यांमार में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, अफ्रीकन देशों में क्या हो रहा है. वो लोग मारे जा रहे हैं, जीनोसाइड कमिट की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है. दे आर लिविंग एज रेफ्यूजीज इन अदर कंट्रीज, दे आर लिविंग एज स्टेटलेस पीपल इन अदर कंट्रीज. ये प्रॉब्लम आज भी बहुत सारे देशों में है. So despite sufficient international law relating to citizenships, millions of people around the world still don't have any nationality. देखा, millions of people, ऐसा नहीं कि बहुत कम, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिटीजनशिप ही नहीं है. दे आर स्टेटलेस. तो अगर आप स्टेटलेस है तो ना ही आपको कोई पब्लिक बेनिफिट मिलेगा, ना वेलफेयर, ना हेल्थ केयर, ना एजुकेशन, ना रिटायरमेंट फंड्स, कुछ भी नहीं. हाउसिंग, कोर्ट्स, जुडिशियल सिस्टम, कुछ भी नहीं. So there are approximately 11 million people around the world who are stateless according to a recent report. 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो stateless है इस दुनिया में. So but this number is just an estimate. It has been very difficult for organizations to collect exact data
on the number of stateless persons because governments are often not reluctant to disclose the information about stateless people, क्योंकि सरकारें ही नहीं चाहती हैं कि इन लोगों को डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये लोगों को डिटेक्ट करेंगे तो वो डिमांड करेंगे तो उनको नेशनलिटी देनी पड़ेगी, और नेशनलिटी देना पड़े तो उनको सारे फैसिलिटीज देनी पड़ेगी. दैट विल बी वेरी मच अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. Article 1 of the 1951 Convention, which is relating to the status of stateless persons, it defines a stateless person as a person who is not considered as a national by any state under the operation of its law. कोई भी देश उसको अपना national नहीं मानता. That is the definition of a stateless person under the 1957 Convention relating to status of stateless persons. तो ये जो 1954 का जो convention है UN का, it identifies who is a stateless person and ensures that stateless persons enjoy fundamental rights, freedoms without any kind of discrimination. ठीक है, तो भले ही वो स्टेटलेस हो लेकिन उनके खिलाफ आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. One inference that can be drawn from this definition is that if a person needs to improve himself stateless, he has to prove a negative that he or she has no legal bond with any other country. ठीक है, तो उसको तो प्रूव करना पड़ेगा, देखो मेरे किसी देश के साथ कोई लिंकेज नहीं तो मैं स्टेटलेस हूँ. और अगर आप स्टेटलेस भी हैं तो जैसे मैंने कहा कोई भी देश आपको उसके लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. तो देयर आर सम सजेशंस व्हिच आर बीन गिवन by various international organizations and countries to overcome the problem of statelessness. So every nation determines who its nationals are under its own law. हर देश, जैसे हमारे पास भी सिटीजनशिप एक्ट है, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया था जिसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुए कि वो बोलते हैं कि भाई कोई तो एक डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आप इंडिया को बिलोंग करते हो, तो उसके ऊपर भी बहुत वाद विवाद हुआ. सो दिस लॉ मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल कन्वेंशंस. जो भी आप लॉ बनाओगे, सिटीजनशिप एक्ट हो गया, कुछ भी डोमिसाइल लॉ हो गया, दोज लॉज हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ. अपने इंटरनेशनल लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते. Pertaining to questions of nationality, possession of an updated collection of nationality laws on the part of the states is yet another important step. Further, the states should understand the implementation of such laws in order to resolve conflicts of law involving nationality. तो हर सरकार ने, हर देश ने स्टेटलेसनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. दे शुड रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ठीक है, लोग अगर स्टेटलेस है तो उनको नेशनलिटी दीजिए, या जो देश जिन देशों से वो भाग के आए उन देश की सरकारों के साथ बात कीजिए. जैसे बांग्लादेश और इंडिया म्यांमार के साथ बात कर रहे हैं कि भाई आप रोहिंग्यास को क्यों मार रहे हो, क्यों उनको भगा दे रहे हो, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, आप अपने देश में जगह दो, इतने सालों से वहां पे रह रहे. तो एक पॉलिटिकल प्रेशर डालिए म्यांमार के ऊपर कि आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए. So according to Article 7 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, loss or renunciation of nationality should be done only after the person has acquired the nationality of another state. ठीक है, जब तक वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप या नेशनलिटी एक्वायर नहीं कर लेता तब तक वो अपने पहले देश की नेशनलिटी को लूज नहीं कर सकता. यू हैव टू एक्वायर अनदर कंट्रीज नेशनलिटी फर्स्ट, देन ऑटोमेटिकली यू विल लूज द नेशनलिटी ऑफ योर प्रीवियस कंट्री. तो अगर आप कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है कि आप कैनेडियन हो, ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप का जो भी सर्टिफिकेट होगा या जो भी प्रूफ होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और तब तक अगर नहीं हुआ, कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिली, तो आपके खिलाफ ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप आपकी नहीं जाएगी. So when registering births, states should identify cases of disputed nationality and should grant citizenship if they find that such a person would become stateless. Birth register कीजिए, registration of births, ठीक है. Parliamentarians can also help to reduce or eliminate the incidence of statelessness by adopting national legislations in consonance with international or relevant provisions are Article 6, 9, 10 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. कि आपके देश में आप ऐसे कायदे बनाइए जिससे आपकी स्टेटलेसनेस का प्रॉब्लम कम हो जाए. इंडिया में तो सिटीजनशिप एक्ट है ऑलरेडी. Parliamentarians can also act as watchdogs by ensuring that the legal framework of their state does not deliberately render individual stateless. ऐसा तो कायदा मत बनाइए कि पर्पसफुली डिलिबरेटली आप किसी को स्टेटलेस कर रहे हो, ऐसे कायदे मत बनाइए. उल्टा ऐसा कायदा बनाइए कि लोगों को नेशनलिटी मिलने में मदद हो. सो दैट वाज अ टॉपिक अबाउट डोमिसाइल एंड नेशनलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसके ये सारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे डोमिसाइल और नेशनलिटी डिसाइड की जाती है. रेसिडेंस का मतलब बहुत सिंपल है, जहाँ पे आप रहते हो. इट डजंट मीन कि वहाँ पे रेसिडेंस का इसका मतलब ये नहीं होता है
कि परमानेंट रेसिडेंस, अगर आप परमानेंट रेसिडेंस हो जाओगे तो वहाँ के डोमिसाइल हो जाओगे। तो रेसिडेंस इज टेम्पररी, कि जैसे 1 महीना यहाँ रह गए, 2 महीना वहाँ रहते हो, 15 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे देश चले गए। So that is residence. You are living in a particular area for a temporary basis without having any intention of living there forever. Domicile is indefinitely, आप वहाँ पे रहना चाहते हो, सालों साल आप वहीं पे रह रहे हो, और नेशनलिटी मतलब उस देश को बिलोंग करते हो, सिटीजन हो उस देश के। सो रेसिडेंस के लिए कुछ अलग से नोट्स या पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे रेसिडेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप रहते हो टेम्पररी बेसिस के लिए, वहाँ का आपको रेसिडेंस माना जाता है, दैट्स इट। पर डोमिसाइल को सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू स्टे, नेशनलिटी वहाँ पे आपको पैदा होना होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी, डोमिसाइल, नेशनलिटी और रेसिडेंस का सिंपल, इट्स टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। तो उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है कि रेसिडेंस का क्या क्राइटेरिया होगा। ओके, so that was about this particular chapter with respect to private international law.